My personal view is that the government is scared to have a debate. The Prime Minister didn't come into the House because he was scared of what we were going to say. He was scared of being handed Mr. Naravane's book as a first step, right? And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed, and the government doesn't want to do that. The story started a few days ago when the issue of that book came, the Naravane book. And the government didn't want me to discuss that at all. And so they stalled the House. They didn't let me speak. That happened 3 or 4 times. In that they said that I cannot. First they said that I cannot quote a book. Then I said I'm not quoting a book, I'm quoting a magazine. Then they said you cannot quote a magazine. Then I said I'll speak about it. Then they didn't want me to speak about it. They also said, Defense Minister said falsely that the book has not been published. In fact, the book has been published and we've got a copy of it also. So that is one big issue. Not allowing the LOP and the entire opposition to speak in the President's address. Second issue is one of their members spoke quoting books, multiple books, and spoke very vile stuff, and nothing was said. So we don't like the fact that they can say whatever they want, whenever they want, and the opposition cannot. Third issue is suspension of our members. And final issue which we are very disturbed about is this idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister. There's no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. And he's still scared because he cannot face the truth, right? There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. And I also mentioned that, look, if somebody is said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that, right? So that's basically what's happened. Now the agreement is that we'll be allowed to say, tomorrow we'll be allowed to say these points. And then the discussion should happen. So we are quite keen that the discussion happens. We want the discussion to happen. संसद का सत्र जारी है और संसद के सत्र में यूएस डील को लेकर हंगामा। क्या हुआ है? बांग्लादेश के साथ भी डील हुई है और बांग्लादेश से जो अमेरिकी यार्न से बने जो क्लॉथ्स हैं वो अमेरिका में जाएंगे तो उस पे 0 टैरिफ लगेगा, लेकिन भारत से जो जाएगा उस पे 18% टैरिफ लगेगा। इस पर राहुल गांधी ने आज पूरे संसद में हंगामा किया है। उनका एक स्टेटमेंट मैं सुना देता हूं और स्टेटमेंट ये है कि द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आई नो द प्राइम मिनिस्टर वुड नॉट सेल इंडिया अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, he would not do it. So why has he sold India? Because they are choking him. He has sold India because they have a grip on his neck. गर्दन पे किस तरह का ग्रिप है भारत सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, और अभी एपिस्टीन फाइल भी चल ही रहा है। कई तरह के दबाव है, इंटरनेशनल हंगामा है, लेकिन यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील हुआ है उसमें भारत का नुकसान ही नुकसान है। कई अर्थशास्त्री इस पर अपना वक्तव्य दे चुके हैं। चर्चा इसी विषय पर होगी। बहुत दिनों बाद जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। इनकी तबीयत बीच में खराब थी और इसीलिए हम लोग कुछ दिनों से विराम पे थे। जेपी सिंह साहब के पास चलते हैं और आज समझते हैं कि संसद में जो हंगामा हुआ है, क्या क्या मुद्दे उठे हैं, पर्टिकुलरली इंडो यूएस ट्रेड बिल और बांग्लादेश ने जो ट्रेड डील की है, दोनों के संदर्भ में। स्वागत है सर। जी सर, नमस्ते। देखिए सर, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, ना इकोनॉमी मेरा कभी कोई सब्जेक्ट रहा। जी, मेरा भी नहीं। मेरी जानकारी और मेरी जिज्ञासा उतनी ही तक रहती है जितने तक पत्रकारिता में संभव है, क्योंकि जिसमें विशेषज्ञता हासिल ना हो उसमें कोई विशेष कुछ कहना जरा ठीक नहीं लगता। लेकिन
एक कॉमन मैन के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक संपादक के रूप में, ये जो ट्रेड डील मुझे समझ में आई वो जी। पूरी तरह एक तरफा है। और हम्म। ये ऐसा लगता है कि जैसे भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसी गहरे दबाव में है और पूरी तरह कंप्रोमाइज है, जो ट्रम्प ट्रम्प की धुन पर नाचने के लिए विवश है। और यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि ट्रम्प खुलेआम पब्लिकली धमकी दे चुके हैं कि मैं जब चाहूं नरेंद्र मोदी का पूरा कैरियर बर्बाद कर सकता हूं। तो ट्रम्प के एकदम। पास ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी का पूरा कैरियर बर्बाद कर देंगे। 2014 के पहले जब मोदी मुख्यमंत्री थे तो उनको तो अमेरिका जाने की इजाजत तक नहीं थी। अमेरिका का वीजा ही नहीं हम्म। मिलता था। इस तरह का दाग उनके ऊपर गुजरात का लगा हुआ था। तो 2014 से ये पिछले 10-12 साल में ऐसा क्या हुआ कि इनकी गर्दन पूरी तरह उनकी नकेल में आ गई। अब इसमें एपेस्टीन फाइल आ गई। इसी बीच इधर नरवणे की किताब आ गई जो कायरता की दास्तान है भारतीय लीडरशिप की, जो अपने को बहुत मजबूत लीडरशिप कहती है उसकी कायरता की दास्तान है नरवणे की किताब। एक ही लाइन हो, जो मन करे करो, जो उचित लगे करो, जो उचित लगे करें। और उसके बाद जो है लाल किले में ट्रायल जो है मोदी जी झेलेंगे कि नरवणे को झेलना पड़ता है पहले गोली हम्म। चलाकर। खैर, इस संदर्भ में देखें तो ये भारत का अमेरिका के साथ हुआ यह सौदा पूरी तरह समर्पण की कहानी बयान करता है। यह समझौता पारस्परिक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है जैसा कि ट्रंप ने स्पष्ट किया है। अमेरिकी समानता के लिए नहीं बल्कि साम्राज्यवादी प्रभुत्व के लिए खेल रहा है। आपने अभी कपास का जिक्र किया। भारत भी कपास उत्पादक देश है। भारत अपने कपास से अपना जो है वो क्या कहते हैं कपड़ा उद्योग चलाता है। अब अगर बांग्लादेश अमेरिका को भी कहे कि देता है। हमारा तुम कपास लो और भारत में जो है इससे कपड़ा बनाओ भेजो तब हम इस पे 0% लेंगे, तो भारत के किसान कहाँ जाएंगे। और बांग्लादेश हम्म। कपास उत्पादक देश नहीं है। तो बांग्लादेश को अमेरिका से कपास आएगा और बांग्लादेश उसका कपड़ा बनाएगा, तो अमेरिका जो कपास भेजेगा उसका भी तो दाम वसूलेगा। ऐसा हम्म। तो है नहीं कि मुफ्त में कपास देगा इनको कपड़ा बनाने के लिए। लेकिन ऊपर से देखने में तो ये ही है कि उनका 0% हमारा 18%। इसके अलावा जब अभी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाना शुरू किया उसके पहले भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड व्यापार था वो एक ही 2-3% का था। और जब अमेरिका ने इनके ऊपर वो लगाना शुरू किया तो दूसरे देशों ने अमेरिका के सामानों पर भी उतना ही टैरिफ लगाना शुरू किया, लेकिन ये शांतिपूर्ण बने रहे। यहाँ वॉलमार्ट, अमेजन, इस तरह लोग तमाम लोग जो है तब से बिजनेस करते रहे, उनके ऊपर एक पैसा भी एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगा। और तो और इसमें जो डिजिटल शुल्क भी माफ कर दिया है। तो पूरा मुनाफा लो और पूरी तरह जाओ। जो पहले हजारों करोड़ रुपया भारत डिजिटल टैक्स से अंतरराष्ट्रीय उनसे वसूलता था उसमें भी इनको मुक्ति मिल गई है। तो अमेरिकी अमेरिका का ये जो समझौता है ये ऐसा लग रहा है जैसे कि गांव का जमींदार जो गांव के सबसे कमजोर वर्ग के व्यक्ति को दबा करके उसका घर, उसकी जमीन, उसकी जोरू, उनके बच्चों को बंधुआ मजदूर बना के उनका दैहिक आर्थिक शारीरिक शोषण करता था। उस तरह की जी। स्थिति हो गई कि हम जो कहें मानो, नहीं तो अब ये कहने की इनकी हिम्मत है कि नहीं तो क्या। तो नहीं तो एपेस्टीन फाइल में जो रंगीन फोटो हैं अश्लील, भले काला चप्पा ही चपका के जो है वो क्या कहते हैं पब्लिक में आ जाएगी। अभी तो नामे आने पर जवाब देते नहीं बन रहा है। 33 बार नाम आया है। यह सौदा 19वीं सदी के औपनिवेशिक व्यापार की याद दिलाता है। टैरिफ संरचना अमेरिका के पक्ष में है। भारत टैरिफ को शून्य कर देता है जबकि अमेरिका 18% की दर लगाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत ने 5 वर्षों में $500 के अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। कौन सा मुक्त व्यापार समझौता किसी एक पक्ष पर दूसरे से बड़े पैमाने पर सामान खरीदने का एक तरफा दायित्व डालता है। अभी तक कोई और हो तो बताएं आप, या हमारे दर्शक जो भी हैं वो खुद समझें और खुद भी खोज करके देखें क्या इसके पहले एक तरफा व्यापार कभी भारत ने माना था। मैं तो इस हम्म। बात का पक्षधर हूं कि न मैं तुम्हें कोई सामान दूंगा और न तुमसे कोई सामान लूंगा। जो हमारा सामान है उसी में सादा जीवन, उच्च विचार, गांधीयन
जो डेवलपमेंट थ्योरी है, मैं तो उस पर विश्वास करता हूँ। हमें तो बाजार में ढकेल के मार्केट फोर्सेस से पूरे परिवार को प्रभावित कर दिया गया है, इसलिए हम बाजार की चकाचौंध में परेशान हैं। वरना हम ही थे जो बिना पंखे के अपने घर में हमने पढ़ा। हम ही थे जो हाई जी स्कूल के पहले हमारे घर में लाइट नहीं थी। सन 65 माने 63 के पहले। 63 के बाद हमारे घर में जो है लाइट लगी, तब रोशनबाग मोहल्ला इलाहाबाद जहां मैं रहता हूँ, एक या दो घरों में जो है डीसी मीटर था, एसी भी नहीं था। एसी लाइन नहीं थी, डीसी लाइन थी। तो हम लोगों ने तो लालटेन युग से शुरू किया है। एक पंखे में बहुत मुश्किल से एक पंखा लगा था, तो फिर पता चला कि पूरे घर के लोग एक पंखे में रहते हैं। फिर हर कमरे में पंखा लगने लगा, फिर हर कमरे में कूलर लगने लगा, फिर कमरे में एसी लगने लगा। अब जो है ब्लोअर उसका जमाना है। हालांकि तमाम विरोधों के बावजूद हम उसका सेवन नहीं करते, क्योंकि हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और लगता है जैसे हमारी सांस घुट रही है। मैं तो अभी अस्पताल में भर्ती था, वहां भी मैंने कहा भैया ब्लोअर आप चलाओगे तो मैं आपके कमरे में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरा लगता है दम घुटने लगा, क्योंकि ऑक्सीजन वो बहुत तेज सोखता है। एनीवे, तो मार्केट फोर्सेस में आपने ढकेल के हमको पहले चीजों के इस्तेमाल करने के लिए आपने आदी बनाया, और अब आप WTO समझौते से कई गुना आगे बढ़ करके आप जो है अमेरिका समझौते पर जो है पूरी दुनिया पर दबाव डाल रहे हैं, और अपनी दादागिरी आप जो है पूरे अमेरिका, यूरोप, सब जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो कहा जाता था कि यूक्रेन युद्ध और रूसी तेल पर भारत का रुख अब बाहरी दबाव से तय हो रहा है, यह दावा खोखला है, क्योंकि कोई भी शक्ति भारत के संबंधों के लिए पद को परिभाषित नहीं कर सकती। अमेरिका भारत को अपनी स्वायत्त सुरक्षा के लिए एक स्वायत्त ध्रुव के रूप में नहीं, बल्कि चीन को प्रबंधित करने के लिए उपकरण के रूप में देखता है। यह समझौता भारत की स्वतंत्र निर्णय क्षमता को कम करता है, और यह हमारी कमी की बदबू को छिपा नहीं सकता, जो पूरी सड़ान ढा जी रही है पूरे संबंधों में। अब सवाल इस बात का है कि इसको लेके जब पार्लियामेंट में बात उठ रही है, तो सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज फिर जो है वो बजट पर भाषण के दौरान राहुल गांधी का जो शुरू हुआ, तो उसमें फिर अंत में हंगामा ही हो गया। अब राहुल गांधी ने तो केंद्र पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि आखिर अमेरिका भारत से जुड़े आर्थिक फैसलों को किस तरह प्रभावित कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने देश को कृषि क्षेत्र को अमेरिकी हितों के लिए खोल दिया, जबकि किसानों के हितों की अनदेखी की गई। उनके शब्दों में सरकार को देश के हितों से समझौता करने को कोई शर्म नहीं। अब अमेरिका का जो ट्रैफिक पहले टैरिफ जो मैंने कहा था 0.1-2% था, वो 3% था। 3% से 18% पहुंच गया, और प्रधानमंत्री के रुख में दबाव साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से भी आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भूल गए कि बांग्लादेश युद्ध के समय अमेरिका ने किस तरह जो है इनके ऊपर इंदिरा गांधी पर दबाव डाला था, और इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम एक बेड़ा नहीं 14 बेड़ा भेज दो, फिर भी जो हम कर रहे हैं वो करेंगे, जो करना हो कर लो। और रूस ने उधर से खूंटा गाड़ दिया था। आपने तो इस तरह जो है अपनी पूरे सरकार की विदेश नीति बता दी है कि कभी इनके गोद में तो कभी उनके गोद में तो कभी उनके गोद में, और अमेरिका के गोद में परमानेंट, और इजराइल आपका परमानेंट पार्टनर है। पेगासस से लेके सारे आप जासूसी उपकरण से लेके पूरे देश की जासूसी कर रहे हैं। तो आपके सामने ये भी स्थिति नहीं है कि आप अगर खूंटा गाड़ के खड़े हो जाए तो कोई आपके साथ खड़ा हो, क्योंकि आपकी दोगलई जो है वो चारों ओर जग जाहिर हो चुकी है। राहुल गांधी ने रक्षा बजट को लेकर भी सवाल उठाया, और कहा कि उस पर एक तरह का कब्जा दिखाई देता है, जिसे उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी से जोड़ा। उनका कहना है कि अडानी कोई साधारण कारोबारी नहीं है, उसकी कंपनी भी सामान्य कंपनी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका में चल रहे एक मामले का निशाना वास्तव में प्रधानमंत्री है, न कि अडानी। उन्होंने यह भी कहा कि यह कंपनी भाजपा के वित्तीय ढांचे का हिस्सा है। इन टिप्पणियों बहरहाल इन टिप्पणियों को रविशंकर प्रसाद और किरण रिजिजू ने गलत बताया। राहुल गांधी ने अनिल अंबानी का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि वे जेल में क्यों नहीं है, हरदीप पुरी जेल में क्यों नहीं है। उन्होंने इसके कथित रूप से एप्स्टीन फाइल का कारण बताया। बहरहाल सत्ता पक्ष की ओर से इनका विरोध हुआ। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि भारत के लोगों के पास सबसे ज्यादा डेटा है, डेटा की सुरक्षा सबसे अहम है, हमारे लोगों के टैलेंट सोच पर कब्जे की कोशिश हो रही है। यूएस और चीन की नजर हमारे डेटा पर है। बांग्लादेश अगर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है तो उस पर 0 टैरिफ है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री गई, अमेरिका निर्यात बढ़ा, हमें क्या मिला? ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया। अब क्या अमेरिका तय करेगा कि हम कहाँ से तेल खरीदें?
ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। एक सुपर पावर का युग खत्म हो गया है। अमेरिका अगर यह कह रहा है कि आप यहाँ से तेल नहीं खरीद सकते, तो उसका मतलब है कि एनर्जी सेक्टर का हथियारीकरण हो गया। अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, इसका मतलब फाइनेंस सेक्टर का हथियारीकरण हो रहा है। सरकार को शर्म आनी चाहिए, जिसने पूरे देश की संप्रभुता को बेच दिया है, अमेरिका के चरणों में गिरवी रख दिया है। ये मैं कह रहा हूँ। राहुल गांधी ने बुधवार को संसद में एप्स्टीन फाइल्स का मामला भी उठाया। राहुल गांधी ने पूछा कि अनिल अंबानी और हरदीपुरी जेल में क्यों नहीं है, क्या गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इस पर हंगामा हो गया। स्पीकर और बीजेपी के सदस्यों की ओर से जोरदार शोर शराबा हुआ। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का यह कहना गलत है कि युद्ध का युग समाप्त हो गया है। गांधी ने तर्क दिया कि वैश्विक संघर्ष और भू राजनीतिक तनाव इसके विपरीत संकेत देते हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी सरकार के आर्थिक आर्थिक सर्वे का भी जिक्र किया। कहा कि आर्थिक सर्वे में मुझे 2 पॉइंट मिले। पहला, हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ भू राजनीतिक संघर्ष तीव्र होता जा रहा है। चीन, रूस और अन्य शक्तियां अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे रही हैं। दूसरा, हम ऊर्जा और वित्तीय हथियारों के युग में जी रहे हैं। अब सवाल इस बात का है, इसका मुख्य अर्थ यह है कि हम स्थिरता के युग में अस्थिरता के युग की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए ने भी यही कहा कि युद्ध का युग समाप्त हो गया है। वास्तव में हम युद्ध के युग में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हम अस्थिरता के युग में प्रवेश कर रहे हैं। डॉलर की चुनौती मिल रही है, अमेरिकी वर्चस्व को भी चुनौती मिल रही है। हम एक महाशक्ति के युग से एक ऐसे नए युग की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। यह एक अस्थिर दुनिया है, अस्थिर सर्वेक्षण भी यही कहता है और मैं इससे सहमत हूँ। अब राहुल गांधी ने तो यही नहीं, राहुल गांधी ने तो कहा कि आपने भारत माता को बेच दिया है, राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है। भारत को बेचने में आपको कोई शर्म नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो संसद में आई नहीं है, तो बताएगा कौन सी शर्म है। और बाकी बेशर्म लोग हल्ला ब्रिगेड है, उनको हल्ला करने के अलावा जो है सिर्फ एक बात कहना है कि राहुल गलत बोल रहे हैं, राहुल गलत बोल रहे हैं। पॉइंट बाई पॉइंट नहीं दे सकते। अब आप सोचिए कि जिस अमेरिका से ट्रेड डील का समझौता हुआ, उससे अभी फाइनल दस्तखत नहीं हुआ और अभी तक पूरे ट्रेड डील का मसौदा सामने नहीं आया। कल एक छोटी सी बात सामने आई थी कि भारत में कुछ दालें भी अमेरिका जो है जीरो टैरिफ पर निर्यात करेगा। आज अमेरिका ने उस बात को हटा लिया, क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि इससे तो हमारी पूरे देश में थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। यही हुआ हुआ तभी अमेरिका ने हटाया है। फिर भी अभी जब तक डील का पूरी तरह मसौदा ना आए, तब तक आप क्या सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक उधर जो है रूस से भी खबर आई, रूस ने भी भारत को चेतावनी दी है इस तेल वाले मसले को लेके। फिर एक खबर आई कि भारत का $900 900 अरब रुपया जो है क्या कहते हैं का नुकसान होगा, जो है वो क्या कहते हैं वेनेजुएला और अमेरिका से तेल लेने पर और रूस से तेल बंद करने पर। तो ये नुकसान कौन झेलेगा? भारत सरकार झेलेगी कि भारत की आम जनता जो मल्टीपल टैक्स देती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो झेलेगी? अब ये सब सवाल है, लेकिन अब ये जनता अगर इन सब पर जो है नहीं ध्यान देगी तो क्या हो सकता है? राहुल गांधी ने लोकसभा राहुल में जोर देकर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के साथ बराबर के तौर पर नहीं बल्कि बराबरी के तौर पर बातचीत करनी चाहिए। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश सभी वार्ताओं में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। उनकी ये टिप्पणी विदेश नीति और वैश्विक गठबंधनों को लेकर चल रही तीखी राजनीतिक खींचतान के बीच आई। राहुल गांधी ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा के लिए चाहे कुछ भी हो जाए दृढ़ संकल्पित रहेगा और इस बात पर जोर दिया कि सभी निर्णय राष्ट्रीय हित के अनुरूप होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भले अमेरिका अपने कृषि आधार की रक्षा करना चाहे, भारत भी अपने किसानों की रक्षा करेगा। इस बात पर बल दिया कि व्यापार वार्ताओं में घरेलू प्राथमिकताओं से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अब आप सोचिए, अमेरिका अपने किसानों को, जिनके पास सैकड़ों और हजारों हेक्टेयर में जमीन है, भारी सब्सिडी देता है। उस सब्सिडी का अनाज जब भारत आएगा तो भारत के किसान जो धीरे धीरे सब्सिडी जिनकी खत्म कर दी गई है लगभग हर चीज में, वो उसका मुकाबला अपने उत्पाद के लागत से कहाँ तक कर पाए। और भारत में तो किसानी जो है वो 1.5 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा, 12 कट्ठा, 10 कट्ठा, 3 बीघे में छोटी सिमट प्लॉट करके है। रह गई। कुछ किसान
कुछ किसान मार्जिनल किसान ही ज्यादातर हो गए, कुछ किसान होंगे जिनके पास हो सकता है कि 30 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा या उससे अधिक जमीन हो। उन्होंने भी तिकड़म से बचा रखी होगी, वरना भारत सरकार ने तो आजादी के बाद इस तरह कानून बनाए हैं कि और कुछ ना हो, जमीन का बंटवारा हो जाए, भले दूसरी संपत्तियां लोग चाहे जितनी खड़ी कर। तो ऐसी स्थिति में ये सारी सब चीजें हैं सर, ट्रेड डील को लेकर, और बड़ी असमंजस की स्थिति है। और ये उसमें प्रथम दृष्टया भारत के हितों के पूरी तरह प्रतिकूल है, और भारत पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के पितामह के पास गुलामी की दास्तान लिखने के लिए सरेंडर हो गई। राहुल गांधी ने कहा एप्स्टीन फाइल को लेकर कि इसमें हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम थे। अडानी के खिलाफ चल रहे केस में भी समन जारी किए हैं, जिस पर भारत सरकार ने पिछले 18 महीनों से कोई जवाब नहीं दिया है। पीएम मोदी पर सीधा दबाव है। बिना किसी दबाव के हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री देश के किसानों, डेटा, एनर्जी और डिफेंस के मामलों पर समझौता नहीं करेगा। ऐसा कोई ऐसा तभी करेगा जब उस पर भारी दबाव और खासकर पकड़ होगी। वही बात है, दबाव क्या एप्स्टीन फाइल का है या कि वो सर ट्रम्प कई बार हरका चुका है, बार सर बार अभी भी बोला कि करियर खत्म कर देंगे, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब आप तक 85 बार। ये बताइए, हमारी जो है वो क्या कहते हैं सेक्स सीडी आपके पास हो, हम्म। हम कितना फुटा नहीं जा देंगे, और वो भी अंतरराष्ट्रीय सेक्स सीडी। आपके पास मानसी सोनी की सेक्स सीडी हो, भाई अमेरिकी गुप्तचरी, ऐसा तो है ना कि भारत में न केजीबी की गुप्तचरी बंद हुई है, न अमेरिकी गुप्तचरी बंद हुई है, न इजराइल की गुप्तचरी बंद हुई है। क्यों? क्योंकि आजकल के अंतर्राष्ट्रीय राजनय में दुश्मनों की ही नहीं, दोस्तों के भी गुप्तचरी कराई जाती है कि इनका जो है रुख किधर की तरफ जा रहा है, हमारे खिलाफ तो नहीं जा रहा है, हमारे दुश्मनों के साथ तो नहीं जा रहा है, या किसी और से ये रणनीतिक गलबहियां करते हैं तो उससे हमारे और हमारी लॉबी के लोगों को कितना नुकसान होगा। तो इसलिए गुप्तचरी निर्बाध जारी है। वो चाहे लेफ्ट लॉबी हो, चाहे वो जो है वो इंडिपेंडेंट लॉबी हो, चाहे वो जो है वेस्ट लॉबी, और चाहे वो अमेरिकी लॉबी हो। तो सवाल जी इस जी बात जी। का है कि जब इतना सब चीजें आपकी कमजोरियां हैं, तो आपको कौन कह रहा है कि 75 साल में आप रिटायर हो गए, एक जो है वो क्या कहते हैं अपनी आश्रम में जो है लाइफ लीड कीजिए, आपको भारत का प्रधानमंत्री बने रहने के लिए कौन कह रहा है? और अब आपको हम्म। समझ में आए, मैं तो आपके माध्यम से एक सवाल और उठाना चाहता हूँ कि जिस समय हरदीप पुरी सब सक्रिय थे, उस समय वो मंत्री नहीं थे, उस समय वो रिटायर्ड हुए थे, आपके क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट थे भारत के। उनको मंत्री किसके दबाव में बनाया गया? ऐसा तो नहीं कि एपीएससी हम्म। ने उनको मंत्री बनवाया, उन्होंने कहा कि हम आपका इतना काम कर रहे हैं तो हमको आप जो है मंत्रिमंडल में शामिल करा दीजिए, और तब से वो मंत्री हम्म। हैं। इस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि हरदीप पुरी को आखिर क्यों मंत्री बाद में बनाया गया, क्या इसके पीछे हम्म। एपीएससी था? ये सवाल है मेरा, ये मेरा आरोप नहीं है। इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए केंद्र सरकार से। क्यों जो है एकदम एकदम। राफेल में जो है अनिल अंबानी को जो है बिना उनको कोई एक्सपीरियंस के जो है उनको जो है क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया गया? क्या उसके पीछे भी एपीएससी है? क्यों अनिल अंबानी का इतना फेवर सरकार अब तक करती रही? क्या उसके पीछे भी एपीएससी फाइलें जिम्मेदार है? तो सवाल इस बात का है कि इतने चक्रव्यूह में इस बीजेपी सरकार ने, उनके मुखिया नरेंद्र मोदी ने देश को फंसा दिया है कि ये शोध का विषय है कि ऐसे इस चक्रव्यूह से भारत कैसे बाहर निकलेगा, और वो भी हमारे देश की मूर्ख जनता या बुद्धिमान जनता, जो भी आप कहें, जो एक जो है मंदिर की मूर्ति के लिए जो है क्या कहते हैं मतलब मरने कटने लड़ने पर आमादा हो जाती है। वो इतनी इतनी बड़ी चीजें हो गई हैं, और वो जो है एकदम चुपचाप जो है भक्तों की तरह जो है मतलब ये जो है आपका एपिस्टीन फाइल की अंधश्रद्धा का दौर में गुजर रही है। हम्म। अभी तक तो अंधश्रद्धा थी, भक्ति थी, अभी ये एपिस्टीन फाइल की अंधश्रद्धा और भक्ति में गुजर रही है। देखिए मुझे याद है वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और उन्होंने उनके जो पूर्ववर्ती थे नारायण दत्त तिवारी, उनके बारे में बड़ी सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि और चाहे जो कुछ हो, मैं लंगोट का कच्चा नहीं हूं। इस देश में हम्म। डाकू मान सिंह को लोग कहते थे कि डाकू मान सिंह बहुत ही चरित्रवान डाकू था,
वो चाहे जो डकैती करे, लेकिन वो लंगोट का पक्का था। तो यहाँ लंगोट का पक्का होना चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र होता है। और जो लोग लंगोट के पक्के नहीं होते, वो चाहे बाकी मामलों में जितने भी चरित्रवान हो, उनको चरित्रहीन ही कहा जाता है। लेकिन इसके ये बाद ही दुनिया भर में है। बिल क्लिंटन पे को भी हटना जवाब देना पड़ा ना, बिल क्लिंटन को। दुनिया भर में है ये मामला। नहीं, लेकिन यूरोप में ज्यादा है, अमेरिका में थोड़ी बेहयाई ज्यादा। बिल क्लिंटन ने भले सफाई दी हो, जॉन कैनेडी के बारे में दुनिया भर की कहानियां हो, लेकिन जो है उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ट्रम्प भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उनकी अगर 100 कहानियां हो बिल क्लिंटन और जॉन एफ कैनेडी की, तो ट्रम्प की तो हजारों कहानियां हैं। लेकिन ट्रम्प ने जो है न इस्तीफा दिया, न इस्तीफा देने का कोई इरादा कर रहे हैं, न अमेरिका में कोई विशेष जो है वहां की सुप्रीम कोर्ट या वो भाई पढ़ने में तो नहीं आया कि उसका जो है संज्ञान लेके उनके ऊपर महाभियोग चलाने जैसी कोई कार्रवाई करने का प्रयास कर रही हो। तो और ये अभी तो मार्च ट्रम्प तक है साहब की डेट। पगड़ी। जी मार्च जी। तक डेट है महाभियोग। अच्छा मार्च देखिए। तक डेट है। अच्छा चलिए देखिए, सर, आगे बहुत आने बहुत वाली जो शुक्रिया। और लाखों जी लाखों पन्ने जो दबे हुए हैं एपस्टीन की, वो क्या क्या गुल खिलाते हैं। जी 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 जी। कई पेज गायब भी हो गए हैं, सुना है। भारत से जुड़े हुए अब कई वो पेज तो गायब हो गए हैं। जब जब आपके पास आधिकारिक खबर नहीं है, इन खबरों पर विश्वास करना है, तो रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ जो है वो सोशल मीडिया पर उड़ाता रहता है, ये उड़ाता रहता है। कहीं से अथेंटिक रूप से गार्जियन या और में पढ़ने को तो मिला नहीं कि 60 फाइल गायब है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सेहत में ध्यान दीजिए। कल हम लोग मिलते हैं किसी और खास एपिसोड पर। देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर। ठीक सर, नमस्ते।